Hello everyone, so I'm Shagufta and welcome to my channel. In this video, we will be discussing a very important topics, which are very much important in life to learn and to know. So basically, these types of videos will come under your topic of motivation. Okay, so we'll be starting a series that is motivational series, you can say, where we will be discussing certain, things, facts, certain things that you need to know, remember, to be successful, to live your life, certain principles of life, certain principles of life that you should remember. Or whenever you are feeling bored, or whenever you're feeling less motivational, whenever you're feeling very low, you can come to this channel and you can see certain things, and if you, these I will be sharing you the things which are very much important in your life. And if you follow this, if you will get the meaning of these videos, meaning of the things that I'm trying to tell, or the meaning of the points that I'm trying to tell, then you will understand how important these topics are. Because when you're learning, when you're growing in life, just just surrounding yourself around the books is not important. You need to learn, you need to grow, you need to come across with the peoples, you need to know extra things that is much more important, right? How to exactly achieve your dreams, how to exactly read also, if you're reading some books, how to exactly read the book, or how to keep motivated yourself, or what should be the thought of your mind, because this is very important. Thought is very important. Okay, whatever you are reading, that is a different thing, but आपका जो ब्रेन है उस किस लाइन पे चलता है, आपका ब्रेन जो है वो किस लाइन पे चलता है, किस बातों पे सोचता है, कैसे सोचता है, उसका क्या थॉट प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में कुछ भी करने के लिए। ठीक है, तो इसी चीज को, थॉट को, to it is like a food for your brain, and these are the things that should be principles of your life. These are the things that should be your, principles that you should follow. It should be in your brain. So these are the thoughts to regulate and to see how, what are your thought processes. एंड जब हम थॉट की बात करते हैं ना, अपने ब्रेन को हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी पड़ती हैं, देनी पड़ती है। ओके, अच्छी आदत जो है वो करने से आपको सीखते हैं, और जब आपको अच्छी आदत जब जानेंगे नहीं तो आप कैसे अडॉप्ट करेंगे, राइट? सो इस वीडियो में हम वही सारी चीज करेंगे कि जो मोटिवेशनल कैटेगरी में हमारी जो वीडियोस आएंगी, ठीक है, मोटिवेशनल कैटेगरीज में हमारी जो वीडियोस आएंगी, ये सारे क्या होंगी, ये सब आपके थॉट प्रोसेस के लिए होंगी, आपके सोचने के लिए होंगी, आपको कैसा अपना थॉट रखना है, जिसमें आज हम, यू कैन से, वी आर स्टार्टिंग आवर वीडियोस इन दिस प्रोसेस। एंड तो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये जो टॉपिक मैं आज जो ली हूँ, इस पे बुक भी लिखा गया है, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। ये बुक भी लिखा गया है विच वॉज पब्लिश्ड इन 1989। ये बुक जो है 1989 में पब्लिश भी किया गया है बाय द राइटर स्टीफन आर कोवे। So Stephen R. Covey has actually published a book on the 7 habits of highly effective people. Okay, सिंपल सी बुक है, सिंपल सी, इसमें सिंपल सी बुक तो नहीं है बट सिंपल सी प्रिंसिपल्स है। जो प्रिंसिपल्स होती है ना, वो सब सिंपल ही होती है, लेकिन उनको समझना, उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना, उस प्रिंसिपल्स को आप कैसे ले रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसी प्रिंसिपल्स, ये जो 10 हैबिट्स, कैसे कैसे हैबिट्स आपको बनाने होंगे, इस पे हम बात करेंगे। व्हाट आर दिस 7 हैबिट्स, okay, of highly effective people. Now let's come to the context that it is trying to tell. Okay, the context that it is trying to tell is, it is talking about the effective people, it is talking about effective people. इफेक्टिवनेस क्यों जरूरी है? ये ऐसी चीज है जो 1980s में भी इसका इंपॉर्टेंस था, और अभी के टाइम में भी इसका इंपॉर्टेंस है और रहेगा, क्योंकि इफेक्टिवनेस जैसे जैसे वर्ल्ड आगे बढ़ेगी, हम लोग का वर्कलोड ज्यादा हो रहा है, काम ज्यादा है, कॉम्पिटिशन ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है। ओके, सो इसमें आपको कैसे अपना काम इफेक्टिवली करना है, कैसे अपने आप को जो है अपना एफिशिएंसी, अपना फुल, यू हैव टू फुल, कैसे अपना पोटेंशियल आप बाहर ला सकते हैं, और कैसे अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं, कैसे यू कैन बी सक्सेसफुल। सो फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इफेक्टिव इन लाइफ. To be effective in life, you should not be like a ball which is rolling on and which doesn't know what direction it is supposed to go. So effectiveness in life is very important, and I think that whatever 7 habits that I'm going to discuss with you today is very much important for you to know. Okay, let's see what are the 7 habits. Let's discuss it. Let's go. So the number one topic that is trying to tell is be proactive.
बी प्रोएक्टिव वर्ड, मैंने कहा ना ये पूरा बुक इन 7 पॉइंट्स पे दिया गया है, बी प्रोएक्टिव, ठीक है। ये 7 ऐसे टॉपिक्स और 7 ऐसे और पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर आप इस पॉइंट्स को आप अपने दिमाग पे डाल रहे हैं, आप इस पॉइंट्स को भी कैसे लेना है, कैसे समझना है, इफ यू आर ट्राइंग टू आप समझ पा रहे हैं तो डेफिनेटली इस चीज को समझिए। और प्लस एट द सेम टाइम, इफ अगर मेरा वीडियोस आप देख रहे हैं, अगर आप कुछ भी सजेशंस देना चाहते हैं कि मैं हिंदी में प्रॉपर फुल हिंदी करूं या कुछ मिक्स भी करूं या फुल इंग्लिश करूं, so please give me your thought, okay, please give me your advice, a suggestion in the comment box, that what mode of medium you wanted, because I wanted mix जिसमें मैं इंग्लिश भी रखूं, थोड़ा थोड़ा हिंदी भी रखूं, but if you are somebody, you can, I will go according to the audience as well. So if you are liking these types of videos, then definitely tell me in what medium you wanted. Okay, so number 1 is be proactive. Be proactive, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, इस एक एक टॉपिक पे मैं सेपरेट वीडियो भी बना सकती हूँ, लेकिन इस पे बहुत शॉर्ट एंड स्वीट हम देखते हैं कि बी प्रोएक्टिव होने का क्या है। ये जो फर्स्ट 3 दिए ना, बी प्रोएक्टिव, बिगिन विथ एंड इन द माइंड, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये तीनों ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मदद करते हैं। इंडिपेंडेंट मीन्स योर थॉट प्रोसेसेस इज इंडिपेंडेंट, यू आर नॉट अफेक्टेड बाय द नेगेटिविटी अराउंड यू आर नॉट अफेक्टेड बाय द नेगेटिविटीज, you are also empathetic as well as sympathetic towards the surrounding. Okay, so ये independent mindset के लिए बहुत important है ये तीनों points. Number 1 is be proactive. Proactive क्या? अगर आप ऐसे अपने आप को किसी भी कैटेगरी में कन्फाइन मत करिए, ठीक है। अगर आप एक इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, तो इट डजंट मीन दैट आपको बस वर्क करना है, नो। अगर आपके अगल बगल कुछ भी ऐसा इट इज कुछ ऐसा बुरा हो रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा चीज है जिस पर आपको ध्यान जाना चाहिए, तो डेफिनेटली आप अपना ध्यान उस चीज पे लेके जाएं, आप उस चीज को एक्टिव बने। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी में कैसे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इस सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट, ये प्रॉब्लम्स आके सॉल्व कैसी होती है? इट इज बिकॉज there are certain proactive people in our society who see these problems and they try to come up with solution. If not even if solution, at least they are aware of what are the problems in the society, right? They are active person, they are not somebody who are जो उनको दूसरा कोई आके कहेगा कि भाई तुम ये करो, नहीं, वो खुद समझते हैं कि मुझे क्या करना है, मेरे क्या प्रॉब्लम्स है, मुझे कैसे अपने आप को, अपना ब्रेन को एक स्टेप आगे चलाना है, एक स्टेप आगे का सोचना है, मुझे इफेक्ट नहीं बनना है, आई एम नॉट गोइंग टू बी द इफेक्ट ऑफ द थिंग्स दैट इज हैपनिंग अराउंड माई सोसाइटी, नो, आई एम or happening around me, no, don't be the product of effect, don't be the product of effect. आपके अगल बगल क्या हो रहा है उसके प्रोडक्ट मत बने, आप प्रोएक्टिव रहें, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 that it is going to talk is begin with end in mind. Begin with end in mind. What does begin with end in mind reflects? Begin and end with mind, it says that आपको अगर कुछ भी काम आपने सोचा है करने के लिए, जो भी आपका एम है, जो भी आपका पर्पस है, जो भी आपने सोचा हुआ है करने के लिए, उसको पर्पस को पहले डिफाइन करो। ओके, जो एंड है ना, see out what is your end, see what is your end. Okay, if you have seen what is your end, just focus on the end itself. Okay, and with that just begin. उसको आप अगर माइंड में रख रहे हैं कि अच्छा मुझे यही करना है ना, अगर आपको आपका एम, आपका पर्पस मालूम है ना, तो यू विल डेफिनेटली डू दैट। ओके, तब आपका पूरा ध्यान जाएगा अच्छा इसके करने के लिए मुझे क्या करना होगा। सो एम एंड पर्पस इन लाइफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज when you decide what you want to do, when you decide your aims, you regulate your thought, you regulate yourself and your things that you are doing. So this is very much important that you should begin with the end. Begin with the end. End here is not means last में, नहीं, आपका लास्ट, आपका जो एम है, आपका जो पर्पस है, वो पहला आप डिसाइड करें, उसके हिसाब से आप चलें, उसके लिए करें आप, ठीक है। नंबर 3 क्या कह रहा है? पुट फर्स्ट थिंग्स first. This is very 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 important habit of this effective peoples. Number 1, क्यों? Number 1 किस लिए? आपके पास बहुत सारे काम है। In this world there is so many of works and every work is very much important, but you should know what is important to you. आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास क्या important है। If for example, if you're a student, you know that study is the only main purpose of it, and you should not compromise with your studies, right? Don't compromise. So basically it tells you not to get compromised with your high priority goals in your life. Okay, decide what is more important to you and focus and channelize all your efforts and all your whatever you have towards the things that is mattering you the most, your priorities in life. Okay,
decide your priorities in life and then conduct yourself according to that priority in your life. Okay, so this is very very important. At the same time priority जो है आपको first thing first priority रखना क्यों जरूरी है, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप देखेंगे ना, आप जब देख लेंगे तो आपको पता चलेगा डिसिप्लिन एक चीज होती है, ठीक है। डिसिप्लिन मीन्स अच्छा ओके आप पहले मैं ये करूंगी उसके बाद ये करूंगी वो करूंगी, अपने आप को रेगुलेट करोगे, यू विल रेगुलेट योरसेल्फ एंड दिस रेगुलेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इफ इट इज बाय योरसेल्फ। दूसरा आपको रेगुलेट ना करे, आप अपने आप को खुद से रेगुलेट करें। आपका दोस्त आके आपसे ना कहे कि भाई तुम पढ़ लो, अगर तुमको ये करना है तो तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो। Don't be that type of entity, because either you are going to regulate yourself or the world is going to make you roam around them. So be a person who is proactive, what is needed, set your priority fix, and at the same time just don't get regulated by the others. Decide what is more important to you and be in discipline and do those things. Number 4, think win-win. थिंक विन विन इज फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब आप कुछ भी काम कर रहे होते हैं ना, वॉट एवर काम आप जो कर रहे हैं ना, प्लीज फोकस लेस ऑन द रिजल्ट पे फोकस मत करो, डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट, पूरा फोकस उसके प्रोसेस पे, पूरा जो फोकस है उसका प्रोसेस पे होना चाहिए, ठीक है। अपने ब्रेन को स्ट्रांग बनाओ, अपना थॉट प्रोसेस को स्ट्रांग बनाओ, और इसके लिए पॉजिटिव आउटलुक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज सेड दैट व्हेन योर थॉट्स आर पॉजिटिव, व्हेन योर थॉट्स आर पॉजिटिव, योर एक्शंस बिकम पॉजिटिव, एज अ रिजल्ट योर पॉजिटिव एक्शंस इज गोइंग टू अट्रैक्ट द पॉजिटिव रिजल्ट इन योर लाइफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? Yes, so this is about the think win-win. Surround yourself with the people who are positive in their life, so that positive thoughts come in your mind. Okay, let's move to the next thing. Seek first to understand than to be understood. This is focusing on the first and the foremost purpose in thing that you should do in your life. That is listen. ऑलवेज लिसन। अपने आप को काम रखें, अपने आप को साइलेंट रखें, अपने आप को स्थिर रखें, ठीक है। ज्यादा बोलने, आपको जहां बोलना है वहां बोलिए, वेयर इट इज नेसेसरी, जहां पे जरूरी है वहां पे आप बोलें, नहीं तो नहीं बोलेंगे तो दैट इज नॉट अ लाइफ। यू हैव टू स्पीक, बट बिफोर स्पीकिंग यू शुड नो what कहाँ पे आप बोल रहे हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आपके अगल बगल अगर आप किसी सराउंडिंग को, आप किसी अगर ऑडियंस को आप संबोधित कर रहे हैं, इफ यू आर एड्रेसिंग सम ऑडियंस, देन यू शुड नो what the audience is wanting, right? What is the need of the audience? Yes or no? What is the need of the audience? You will listen the audience and उसके हिसाब से आप अपना बोलेंगे ना, राइट? सो हमेशा पहले सुने उसके बाद बोलें, ठीक है। दूसरों के थॉट्स, दूसरों को फीलिंग्स, उनको समझ के तब अपने आप को जो है यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन योरसेल्फ, तभी आप जो है अपने आप को एक्सप्लेन भी कर पाओगे उन लोगों के सामने, ठीक है, कि अच्छा मैं ये कहना चाह रही हूँ, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो पाए, कम्युनिकेशन बेटर हो पाए। इसलिए फर्स्ट लिसन एंड देन स्पीक। देयर इज मच मोर, ये तो लिसन का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जब आप लिसन करते हैं ना, तो यू आर गिविंग अ सेट ऑफ प्रायोरिटी टू सम अदर पर्सन। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए हम्बल रहना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। दूसरों को रेस्पेक्ट देना, दूसरों को अहमियत देना, प्रायोरिटी देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस शुड बी अ कॉम्बिनेशन। यू आर ग्रोइंग एज वेल एज यू आर बीइंग हम्बल टू द पीपल्स अराउंड यू, यू आर लिसनिंग देम। दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ लीडर। दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ लीडर। लीडर बस एक नेता नहीं होता है, लीडर सिर्फ एक नेता नहीं होता, लीडर वो इंसान होता है, वो होता है जो पीपुल उसके अगल बगल के जो लोग हैं वो कहेंगे अच्छा दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स मी, दिस इज द पर्सन हु अंडरस्टैंड मी, हु नोज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द एनवायरनमेंट। सो फॉर बीइंग अ लीडर, एक लीडर के लिए, एक आप जब एक सोसाइटी में रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो ये एक क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज सिनर्जाइज। सिनर्जाइज मीन्स yes, man is a social animal, definitely man is a social animal, और man का एक इंडिविजुअल अस्तित्व भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहां पे प्रॉब्लम्स सिर्फ एक को अफेक्ट नहीं करती है, कुछ एक प्रॉब्लम आती है तो सबको अफेक्ट करती है। सो सोसाइटी में एक दूसरे के साथ रहना, टॉलरेंस रखना, ठीक है, एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस रखना और साथ मिल के काम करना, टीम वर्क,
बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एक दूसरे के साथ घुले मिले, सिनर्जाइज मीन्स दैट ओनली, एक दूसरे के साथ आप जब तभी ना यू विल बी एबल टू सिनर्जाइज व्हेन यू आर एबल टू लिसन देम। जब आप उनको सुनते हैं, जब आप एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हैं एक सोसाइटी में, तभी आप एक दूसरे का प्रॉब्लम समझ के और साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। दीज आर द क्वालिटीज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द टीम वर्क बेसिकली, राइट? नाउ लास्ट, these were about the different things. Last and the foremost that we'll be discussing in this video is sharpen the saw. Saw is basically the, you know, that uh, instrument that is used to cut the wood, right? ये क्वालिटीज सारा डेवलप करने के बाद, ये जितने भी आपने क्वालिटीज डेवलप की, राइट, ये जितनी भी क्वालिटीज आपने डेवलप की, क्वालिटीज डेवलप करने के बाद आपको क्या चाहिए? आपको अब चाहिए, ये क्वालिटीज डेवलप करने के बाद आपको चाहिए कि आप जो है, आप अब इस क्वालिटीज के बाद इन क्वालिटीज को कंटिन्यू रखने के लिए अपना जो भी आपका जो पावर है आपका ब्रेन का, उसको आप शार्पन करें, इस सारे क्वालिटीज को आप स्ट्रेंथन करें। Okay, be a good listener, try to understand the people, okay, try to be a positive minded person, try to prioritize things in life, try to be very much clear about the goals in your life, try to be a proactive person in your life. So strengthen these qualities, okay, is basically what you have to continuously work for it, and this is what it is saying. आपको ये नहीं है कि आपने एक बार डेवलप कर लिया हो गया, no, you should continuously work, continuously you should work towards your things in your life. Okay, so this is the end of today's video basically. So I hope this is fruitful for you, and if you like these types of video, then do comment so that I will be sharing you more these types of videos will be coming in the future. That's all for today. Take care. Goodbye everybody.